Good evening, everyone. Today we are going to start our 10th lecture of this summer internship program. And this will be your last session for this Python internship program. So I am sharing my screen and let's get started with it. I hope like yesterday's concept were clear to you all regarding whatever we have gone through, like exception handling. Today we are going to see like file handling in Python, and this is a very crucial step if you want to pursue further in Python in field of data analytics or machine learning programming, है ना? So there you have to deal with different types of files like TXT file, CSV file, JSON file. So because in data analytics, the most crucial part is like how you understand the data. Mostly the data will be present in CSV format, and then how you uh, make that raw data to a data that can be consumed by your model for further ML model training. Na? So that is a completely different path, but this file handling plays a very important role in Python as well as in other programming languages also. So what is file handling? First, we should know what is a file. है ना? So file is nothing but a place where your content is stored permanently. Like there are written files or there are sheets that you write in your exam. So the answer you write on the sheets are getting stored permanently, means they will not be deleted if your exam is over or as soon as you submitted the file, so then it will magically disappear. It will not happen like that until they become useless. They will not be disposed of. Similar thing is in our PCs, mobile phones, and etc. Suppose you have downloaded a movie, it is also a file, MP3 file, or it can be MP4. No, like or it can be of any other format. So like once you downloaded it and you have gone through that movie, you have watched that movie, and so there is no need to watch it again and again. If you want to watch it again and again also, then there will arrive a point where you need to free the space in your phone as you need to download new movies that are available. Okay. So then what you will be doing there is like you will be deleting that permanent file permanently and then getting started with the new file. So that is how file handling works basically. Like he based upon the need, based upon the demand, you interact with the files, like whether you have to store or whether you have to delete. So that is file means every a place that can store your content permanently till the desired period as per the user need is called a file. Now, what is file handling? File handling is similarly the way like you handle files or copies during your school and colleges, or in libraries you put particular file at a particular place or particular book in a particular shelf, and then if you want to go to a science section and then fetch a science book to go through some concept regarding it as per your need, so you will simply go there, read it, and then again put it there. So there you are also handling files. So similar thing is happening in this programming languages also. Like you will be interacting with different files. Files can be of any type. Okay, and every type of file stores a particular type of data. It is not like that कि you just go to any file and you will say कि नहीं मेरे को तो इसमें txt फाइल में CSV का डेटा डालना है, तो that is not how things work basically, है ना? So file handling allows program to store and retrieve data from files, whatever you have written in the file. तो अब क्या करेगा, प्रोग्राम काम करेगा. अब तक क्या कर रहे थे कि लाइक अगर आपको कोई फोल्डर ओपन करना है तो देन यू हैव टू गो, देन ओपन द फोल्डर एंड देन गो थ्रू द कंटेंट योरसेल्फ. लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग आर प्रोग्राम अंडरस्टैंड कि फाइल के अंदर क्या है, उसे उठाओ, उसे पढ़ो और उसको डिस्प्ले कर दो. यूजर की इंटरवेंशन उसमें हमें नहीं चाहिए. अभी के लिए वी विल बी एक्सप्लोरिंग स्मॉलर वर्जन ऑफ फाइल, बट after this Python internship program, I would suggest you should go with data analytics or ML. There you will know why it is important. And there are
data in billions, millions of columns, and then that is manually not feasible for a human to go through all those columns and understand the data that is present inside the file. Like all other companies, whether you are going to a mall, they ask your number, "Ki, sir, can we have your number please?" And so they are storing your shopping history with your number as a profile, as a unique identity against you. ठीक है, मतलब although that is written in their terms and conditions, but means like कि your profile has been created in their database. Now suddenly you stop going to that particular mall. कि you haven't went to that mall, although you were a regular customer in that particular mall, but since last 5 6 months you are not going to that particular mall, है ना? So that thing will be highlighted in their database. The analysts that are sitting behind the scenes who are analyzing the patterns of the customer, like why the customers are suddenly getting dropped, their number are getting dropped, why? So they will analyze the based upon the historic purchases and buys of yours and some other customers or like yourself also. So they will analyze, they will try to find the pattern कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि suddenly the number of customers are getting dropped. So that is all being under part of data analytics, and that data is stored in a huge number of files. A file contains huge amount of data. So there it becomes humanly impossible to go through each and every line and then find out the pattern. There, Python and programming plays a very important role in understanding that data, that random data, and finding the patterns in that data. So that's why file handling becomes very, very easy. And also, you might have heard the term कि like there was a time कि पेट्रोल वॉज द डायमंड, ब्लैक डायमंड कहते थे उसको या कोल को कहते थे शायद। तो लाइक कि पेट्रोल एंड कोल को उस वक्त एक जमाने में बोलते थे कि दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। उससे पहले क्या होता था लाइक ड्यूरिंग द किंग्स एंड क्वींस रूल कि डायमंड्स हो गए, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी होगी, उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस थी, है ना? बट इन टूडेज डिजिटल एरा डेटा इज फार फार मोर इम्पोर्टेंट देन एनी। जितने भी चीज यूज हो रही है, मतलब इवन द एआई मॉडल गेटिंग जनरेटेड डे बाय डे एंड ट्रेन, दे ऑल कंज्यूम डेटा। चैट जीपीटी हो गया, क्लोड हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं है वेयर यू कैन नॉट यूज डेटा। तो जिसके पास जितना ज्यादा डेटा होगा उसके पास उतनी ज्यादा एज होगी, और उस डेटा को जैसे वो हैंडल कर पाएंगे, उसको स्टोर कर पाएंगे, उसको रिट्रीव कर पाएंगे, that is where the main architecture comes in. That is completely different part, but file handling becomes very, very important because everyone wants to preserve their data in today's world. So फाइल हैंडलिंग बेसिकली की स्टोर करता है, रिट्रीव करता है अपने डेटा फ्रॉम फाइल, देन हेल्प्स इन रीडिंग राइटिंग डेटा परमानेंटली बियॉन्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अभी क्या हो रहा है कि लाइक वेन एवर वी आर हिटिंग द प्रोग्राम ना, कि लाइक वी आर डूइंग ए प्लस बी, वी आर एडिंग टू नंबर्स, as soon as we close VS Code और our program execution ends, डेटा जो है उसी वक्त डिसअपियर हो जाएगा। मीन्स वी आर नॉट स्टोरिंग द रिजल्ट इन एनी ऑफ द फाइल। तो वो क्या है, हर बार जब भी जब जब आप पाइथन के प्रोग्राम को बार बार रन करोगे, एज सुन एज यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अगेन, फिर से वेरिएबल क्रिएट होगा, फिर से कैलकुलेशंस होंगी, फिर से रिजल्ट आएगा। लेकिन वो स्टोर क्या नहीं हो रहा, फिर हिट करोगे, फिर से कैलकुलेट होगा, फिर से रिजल्ट आएगा। Means every time you are hitting the run button in Python, the program is creating variables again, doing the calculations again, displaying the results, but not storing the results anywhere. ठीक है? तो अभी के लिए अपने क्या था कि मतलब कि ये बस वोलेटाइल था, कि मतलब जब तक अपन है प्रोग्राम के अंदर देन ओनली ये तब तक अपन को दिख रहा है। बट फाइल्स क्या करती है अपन को कि हेल्प, लाइक दे हेल्प अस स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली बियॉन्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। So as soon as you don't delete like you don't delete a file, so that data will remain there, irrespective of the fact कि आपने अपना लैपटॉप शट डाउन कर दिया है, you have shut down your मोबाइल फोन और मतलब स्विच ऑफ कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ कॉमन फाइल टाइप्स हैं दैट वी डील विद इन आवर एवरीडे लाइफ। एक तो डॉट टीएक्सटी फाइल है, नोटपैड की जितनी फाइल होती है सारी टीएक्सटी फॉर्मेट में सेव होती है। तो लाइक कि टीएक्सटी फाइल्स में कुछ नहीं होता, लाइक यू ओनली राइट द टेक्स्ट इन रोज, यू कैन राइट द टेक्स्ट इन वॉट एवर वे यू वांट। उसमें कोई प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो नहीं करना है, जस्ट इट इज कंसिडर इट एज योर पर्सनल डायरी, जो मन में आए वो लिखते, ठीक है। डॉट सीएसवी फाइल में क्या होता है, दे
आर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, मतलब इसमें जो आपका डेटा होगा दे विल बी सेपरेटेड थ्रू कॉमा। जैसे एक्सेल के अंदर होता है ना कि लाइक रोज होती हैं कॉलम्स होते हैं, सिमिलर थिंग है सीएसवी, इसमें क्या कहते हैं लाइक रोज होंगी कॉलम्स होंगे बट दे विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। तो लेकिन जितना भी डेटा मार्केट में अवेलेबल रहता है maximum times it is in CSV format. It can be in Excel also, but it will be in CSV format. कि जब आप data analytics करोगे then you will find a pattern कि like every free data set that is available over the internet is in CSV format because it is easy to store and कि मतलब अच्छा compatible है ये data format. डॉट जेसन फाइल ज्यादातर यूज होती हैं लाइक व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद आवर बैकएंड थ्रू आवर फ्रंट एंड। डॉट एक्सएलएक्स ये हो गई अपनी वही एक्सेल सीट जो हो गई जो यूज टू डील विद इट इन आवर एवरीडे लाइफ। तो ये कुछ कॉमन फाइल टाइप्स थे। नाउ वी विल बी सीइंग कि लाइक हाउ टू ओपन फाइल्स एंड क्लोज फाइल्स। मैं कल आपको बता रहा था लाइक इनकी फाइनली को अपन यूज करते हैं कि लाइक फाइनली विल बी यूज कि हमेशा कुछ भी क्लोज करना है। तो पाइथन का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये मतलब रूल है, इफ यू ओपन अ फाइल देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज द फाइल, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, मतलब जब आपका काम खत्म हो गया हो तो आपको अपनी फाइल बंद करके जो आपने जब जैसे लाइब्रेरी गए शेल्फ से अपनी बुक उठाई पढ़ी तो वापस आपको उस शेल्फ में रखनी पड़ेगी, है ना। तो सिमिलर थिंग इज हियर कि आपको फाइल डॉट क्लोज लिखना ही होगा एट द एंड, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, तो फाइल ओपन करने का तरीका होता है कि फाइल ओपन सैंपल डॉट टीएक्सटी, वी विल बी सीइंग दिस थ्रू वीएस कोड इन अ बिट। तो इसे अभी एग्जांपल को रहने देते हैं, बट ये देख लो एक बार कि मोड्स ऑफ ओपनिंग अ फाइल। एक रीडिंग मोड होता है कि लाइक आप सिर्फ पढ़ सकते हो, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग इनटू दैट पर्टिकुलर फाइल। ठीक है, ये परमिशन वाला सिस्टम आ जाता है। तो कि लाइक यू आर टेलिंग पाइथन कि जस्ट टू रीड इट, डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा और राइट इट इनसाइड इट। जब आप डब्ल्यू यूज करते हो मोड, तो ये क्या करता है, इट ओवरराइट द एग्जिस्टिंग कंटेंट। सपोज कि आपकी फाइल में पहले से ही कुछ कंटेंट प्रेजेंट है and now you want to write some more additions to that particular file। तो जब आप नया कंटेंट लिखोगे ना तो ये पुराने कंटेंट को ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट का मतलब कि जो उस फाइल के अंदर प्रीवियस कंटेंट होगा वो सारा इरेज हो जाएगा और नया कंटेंट से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। अपेंड, अपेंड में मतलब ये हो गया कि लाइक पुराना कंटेंट तो रहेगा ही रहेगा फाइल के अंदर, जो नया वाला कंटेंट आप ऐड करना चाहते हो वो उसके नीचे अपेंड हो जाएगा। मतलब आपका कंटेंट इरेज नहीं होगा। डब्ल्यू में पूरा कंटेंट इरेज होकर बस नया कंटेंट दिखाई देगा। अपेंड में पुराने कंटेंट भी दिखेगा आपको, द यू विल बी एबल टू सी द ओल्ड कंटेंट एज वेल एज द न्यू कंटेंट दैट यू आर एडिंग टू दैट पर्टिकुलर फाइल। आर प्लस का हो गया कि आपको पढ़ना भी है और राइट भी करना है एक ही साथ। तो ये उसमें आर में आ जाता है। ये कुछ यूनिक्स में भी आती है टर्म कि जब आप किसी फाइल की परमिशन सेट करते हो तो वहाँ पे रीड राइट और अपेंड वाले मोड में आपको सेट करनी होती है एज पर यूजर। ओके, तो राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल ये भी अपन अभी देखने वाले हैं। ओके, तो अभी एग्जाम्पल पे स्विच करते हैं उस पे VS कोड पे। अब देखो कल ना मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि लाइक फाइल नॉट फाउंड एरर, मैं कल नहीं समझाया था तुम्हें, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट पर्टिकुलर एरर टुडे। तो अब क्या करेंगे अपन की लाइक वी विल बी राइटिंग अ, फर्स्ट वी विल बी ओपनिंग अ फाइल, देन वी विल ट्राई टू सी कि फाइल नॉट फाउंड एरर क्यों आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि अपन ने एक फाइल वेरिएबल लिया। उसके बाद अपन अब लाइक वी आर ओपनिंग दैट पर्टिकुलर फाइल। अभी इधर यू कैन सी अपने पास सिर्फ दो फाइल्स है, मेन डॉट पी वाई, टेस्ट डॉट पी वाई, इसके सिवा अपने पास मतलब और कोई फाइल नहीं है। ठीक है, तो नाउ लेट्स राइट लेट्स कॉल अप लेट्स ओपन अ फाइल नेम hello डॉट टीएक्सटी, और इसको अपन ओपन कर रहे हैं लाइक वी आर ओपनिंग इट इन रीडिंग मोड। ठीक है, नाउ वी वांट पाइथन कि अपन एक कंटेंट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और पाइथन से बोल रहे हैं कि पाइथन फाइल को रीड करना है जो हमने ऊपर ओपन किया। अपन ने हेलो डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन किया एंड देन वी हैव स्टोर्ड इट इनसाइड फाइल वेरिएबल। नाउ वी आर टेलिंग पाइथन कि ये जो फाइल है जिसके अंदर हेलो डॉट टीएक्सटी फाइल स्टोर्ड है इस प्रोग्राम के अंदर, उसको रीड करना है। पाइथन ने उसको रीड करा और उसका जो कंटेंट था वो इस कंटेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया।
Now we are telling Python कि Python please print the content of that file that you have found out and stored into this variable. ठीक है, और क्योंकि like we have opened this file in the beginning, so we have to close this file at all costs, otherwise we will get an error. ठीक है, तो अब अपन उस फाइल को वापस शेल्फ में रख रहे हैं। ठीक, अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ एंड नाउ लेट्स सी क्या आता है। अब देखो इधर क्या आया कि लाइक फाइल नोट फाउंड एरर। ठीक है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी हेलो डॉट टीएक्सटी एग्जिस्ट। एज यू कैन सी इधर कोई भी हेलो डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल नहीं है। तो वी आर इंस्ट्रक्टिंग पाइथन टू ओपन अ फाइल दैट डजंट इवन एग्जिस्ट। जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो उसको ओपन कैसे करेगा, तो उसी एरर को बोल देते हैं फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, नाउ आप इसको ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में भी लिख सकते थे कि ये पूरे का पूरा आप इधर से कट करके लाइक यू विल राइट द ट्राई ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद ये पूरा कंटेंट आपका। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना था एक्सेप्ट ब्लॉक, और इसके अंदर आपको लिखना था कि ट्रेन प्लीज क्रिएट अ फाइल। को अगर आप रन करते तो इसने देखो अपन को बता दिया कि प्लीज क्रिएट अ फाइल फर्स्ट, है ना। तो अब ये ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक जो है उसको हैंडल कर पा रहा है। दैट व्हाई वी हैव गॉन थ्रू कि ये व्हाई ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपना पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो फाइल नॉट फाउंड एरर को जो है वो टैकल कर पा रहा है। ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं आज। इसके नीचे आप फाइनली भी लिख सकते थे लाइक फाइल शुड क्लोज एवरीथिंग। ओके, तो अब अपने पास हेलो डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल नहीं है, इसलिए अपने पास फाइल नॉट फाउंड का एरर आया। तो अभी व्हाट वी विल डू कि वी विल क्रिएट अ फाइल नेम एज हेलो डॉट टीएक्सटी। ठीक है, हेलो डॉट टीएक्सटी ये फाइल क्रिएट होगी। नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू कि आप बस इसमें कुछ भी अपने मतलब से कंटेंट लिख दो, हेलो या फिर वेलकम पाइथन। ठीक, इसको सेव कर दो और फिर इस प्रोग्राम को फिर से रन करो मेन डॉट पी वाई वाले को। सेव नहीं हुई कोई। अच्छा, देखो हुआ क्या है। ये फाइल जो है ये स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर अपन ने क्रिएट किया, जबकि ये अपन को पेरेंट फोल्डर में क्रिएट करनी है। तो इसे उठा के इधर ले आओ बाहर, मूव कर दिया अपन ने फाइल। ठीक है, इस वजह से ये एरर आ रहा था क्योंकि वो पेरेंट फोल्डर के अंदर चीजों को देख रहा है, तो वो स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जा ही नहीं पाएगा, राइट। ठीक है, तो ये हेलो डॉट टीएक्सटी पेरेंट फोल्डर के अंदर है इसके साथ। अब अगर इसको अपन फिर से रन करते हैं तो अब एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यू कैन सी कि लाइक वेलकम पाइथन लर्नर कंटेंट जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो पेरेंट फोल्डर के अंदर फाइल होगी तभी उसको रन कर पाएगा। अगर स्क्रिप्ट के अंदर है तो जैसे कि इधर जाओगे तो ये स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में था, तो देन यू हैव टू गिव इट रिलेटिव पाथ। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है लाइक कि कॉपी द पाथ, फिर वो पाथ इधर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो उस पर्टिकुलर पाथ पे जाके उस फाइल को वो रीड कर लेगा। तो ये देखो जैसे कि लाइक व्हाट हैज हैपेंड हियर कि उसने वेलकम पाइथन लर्नर्स वाला जो वो था मैसेज था वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और मोड्स भी हैं, तो लेट्स गो थ्रू द पीपीटी फर्स्ट। तो ये अपन ने फाइल के अंदर अच्छा राइट वाला भी एक्सप्लेन करना है। तो अभी क्या करते हैं, सिर्फ मोड चेंज करते हैं। नाउ वी विल बी सीइंग कि अगर अपन को फाइल राइट करनी हो, अब याद रखना अपनी फाइल में कंटेंट क्या लिखा हुआ है। अपनी फाइल में कंटेंट लिखा हुआ है कि लाइक वेलकम पाइथन लर्नर। ठीक है, अब अगर अपन डब्ल्यू मोड यूज करते हैं, मीन्स अगर अपन राइट मोड यूज करते हैं, तो आइडियली होना क्या चाहिए कि जो पुराना कंटेंट है वो नए कंटेंट से रिप्लेस हो जाना चाहिए, राइट। तो अब ये फाइल तो ओपन करनी है अपन को, पढ़ने के लिए बस मोड चेंज करना होता है उसका। तो देन अपन क्या करेंगे, बस इधर से सेकंड लाइन से चीजें थोड़ी चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। नाउ यू हैव टू राइट इनसाइड दैट फाइल, तो फाइल डॉट
राइट, और इसके अंदर आप कुछ नया मैसेज लिख दो, लाइक हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। राइट, हेलो वर्ल्ड नाम का हमने मैसेज लिखा है। पहले हमारा अर्लियर मैसेज है वेलकम पाइथन लोकल। ठीक है, अब उसके बाद जब आप लाइक एज सून एज यू हैव रिटन दिस हेलो वर्ल्ड मैसेज की फाइल डॉट क्लोज कर दो। चाहो तो एक मैसेज और प्रिंट करा सकते हो, लाइक कि फाइल, इसको बाद में करते हैं, पहले इसी को करते हैं। तो लेट्स रन द प्रोग्राम। अब आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, राइट? ठीक है, क्यों? बस कमांड एग्जीक्यूट हुई और वो क्रिएट हो गई, इसलिए मैं लास्ट में एक मैसेज लिख रहा था जिसमें पता लगता कि हाँ कुछ प्रिंट हो रहा है। तो अब ये आपकी फाइल क्रिएट हो गई है। नाउ यू गो टू हेलो डॉट टी एक्स टी फाइल। इस फाइल में अगर आप जाओगे तो यू कैन सी कंटेंट रिप्लेस हो गया है। अब हेलो वर्ल्ड आ गया है इंस्टेड ऑफ वेलकम पाइथन। ठीक है, तो यानी कि इसने उस फाइल को ओवरराइट कर दिया। इट हैज डिलीटेड द ओल्डर वर्जन ऑफ दैट कंटेंट ऑफ द फाइल और नए वर्जन से उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और इसके और एक चीज हो रहा है इसमें कि लाइक इसमें ना फाइल नॉट फाउंड का एरर नहीं आएगा। सपोज एक फाइल दूसरी क्रिएट करता हूं मैं, टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी करके। ठीक है, इसके अंदर ये कंटेंट लिखा, और जब मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो देखो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, एरर नहीं आया, लेकिन इधर यू कैन सी कि टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट हो गई। मतलब आप उस फाइल को रीड नहीं कर सकते, दैट डजंट इवन एग्जिस्ट। बट राइटिंग में क्या होता है, यू आर क्रिएटिंग अ फाइल। आप खुद फाइल क्रिएट कर रहे हो तो फाइल नॉट फाउंड एरर आने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल नहीं है, तो मुझे वो फाइल क्रिएट करनी है बाय डिफॉल्ट, और उस फाइल का कंटेंट के अंदर रखना है आई लव माई कंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से दो चीजें हो जाती हैं। नाउ अभी अपन क्या देखते हैं, अपेंड भी अभी वाले ही एग्जांपल में देख लेते हैं कि लाइक इफ यू वांट टू अपेंड द टेक्स्ट इनसाइड दैट पर्टिकुलर फाइल, तो उसमें क्या कहते हैं, अपेंड कैसे करोगे? तो कुछ नहीं करना, बस डब्ल्यू को ए से रिप्लेस कर दो। कुछ नया कंटेंट देखते हैं, टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी का कंटेंट अपन अपेंड कर रहे हैं, याद रखना, क्योंकि अपन ने टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी यहाँ पे ओपन कर रखी है। तो इसके अंदर अपन जाएंगे एंड देन वी विल रिप्लेस इट विद न्यू कंटेंट, लाइक। ठीक है, अब अपन लाइक वी हैव रिप्लेस द कंटेंट, लेट्स गो एंड वॉच एनीमे वाला पार्ट। और अभी अपने टीएक्सटी फाइल में कंटेंट है आई लव माई कंट्री। ठीक है, तो नाउ मैं फिर से इस पाइथन को मतलब प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड लेट्स सी कि फिर क्या होता है। ठीक है, नाउ टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी में जाएंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट कि आई लव माई कंट्री वाला कंटेंट तो है ही है, उसके साथ लेट्स गो एंड वॉच एनिमे वाला कंटेंट भी आ गया। ठीक है, तो लाइक दिस इज हाउ यू कैन अपेंड थिंग्स इन फाइल्स। अब यू विल बी सीन कि यार ये तो एक ही लाइन में मतलब इससे लगा हुआ आ रहा है, तो न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करोगे तो वो चीज रिजॉल्व जाएगी। दैट इज टोटली अबाउट फॉर्मेटिंग, वी विल नॉट गो इन डिटेल अबाउट फॉर्मेटिंग। कि बस स्लैश एन लगा दो एंड देन क्या कहते हैं, इसको फिर से रन कर दो। तो देखो कि नेक्स्ट वाली लाइन में आपके लेट्स गो वॉच एनिमे वाला कंटेंट नेक्स्ट वाली लाइन में आ गया। ये पुराना वाला क्योंकि ऑलरेडी अपन अपेंड कर रहे हैं, ओवरराइड नहीं कर रहे, इसलिए ये दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये क्यों नहीं नेक्स्ट में आया। लेकिन इसके बाद जितनी बार आप रन करोगे वो सब नेक्स्ट में आएगा। अगर एक बार और रन करोगे तो ये देखो, ठीक है, फिर से आ गया नेक्स्ट वाली लाइन। तो अगर वो टोटली डिपेंड अपॉन यू कि हाउ यू वांट टू डिस्प्ले द कंटेंट, तो ये अपना अभी पार्ट नहीं है। अब क्या करते हैं, लाइक ये तो अपना हो गया, लेट्स सी कि अगला क्या टॉपिक है। तो राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल वी हैव सीन इट। ठीक है, रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल दिस वी हैव आल्सो गॉन थ्रू। हाँ, इस चीज को और देख लेते हैं, लाइक कि मतलब दो तरीके होते हैं कि रीड लाइन वाला करके इसके फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल बी शोइंग यू द इजीएस्ट इजी पार्ट। तो लाइक यू कैन ऑल्सो यूज रीड लाइन फंक्शन। जो आप ये रीड यूज कर रहे हो ना इधर, ये फाइल डॉट रीड,
तो यू कैन ऑल्सो यूज रीड लाइन, रीड्स वन लाइन ओनली। ठीक है, एक ही लाइन को रीड करेगा फिर दे देगा। रीड लाइंस करोगे तो रीड ऑल द लाइंस इनटू अ लिस्ट। ठीक है, तो इसको अपन एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू अभी देखेंगे, बट उससे पहले मेरे को हाँ विद स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी यू हैव सीन की लाइक हाउ टू रीड अ फाइल। लाइन बाय लाइन वाला भी एक मैं लूप के थ्रू बताऊंगा अभी, पहले वही बता देता हूँ, एक सेकंड। तो नाउ इसको अपन हेलो दो टीएक्सटी में चलते हैं, कुछ कंटेंट इधर लिख देते हैं अपने आप से। तो इतने ही नाम रहने देते हैं, राइट। तो अब क्या करते हैं अपन इसको ना, ये देखो 5 लाइन है इसमें। ठीक है, ये रही। ठीक है, अब इसको अगर अपन सिंपली रीड करते तो देखते हैं क्या आता है। तो हटाओ, and then we will put R here। ठीक है, अमित, राहुल, प्रिया, रिया, करण, पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ प्रिंट हो रहा है, राइट। तो अगर लाइन बाय लाइन रीड करना हो ना, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज कि सिंपली फोर लूप लगाओ, फोर लाइन इन लाइन, ओ सॉरी फाइल। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक रीड ऑब्जेक्ट की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो इधर ये लूप बन गया अपना, और फिर उसके बाद अपन को हर एक लाइन प्रिंट करनी है। प्रिंट लाइन डॉट ट्रिप। इस लाइन को हटा दो। मतलब तरीके हैं कि लाइक देयर आर सेवरल वेज कि हाउ यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट और ये हाउ यू वांट टू रीड द फाइल। तो देखो इसका भी सेम ही रिजल्ट आएगा, विदाउट रीजिंग क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट इन द फाइल। वो ऑब्जेक्ट अपन क्रिएट करते हैं, स्ट्रिप क्यों यूज किया, जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है ना उसको रिमूव करने के लिए। अगर इसको यूज नहीं करते तो क्या इम्पेक्ट आता, शायद इसमें इतना विजिबल ना हो वो impact, पर ये देखो हाँ। तो इस स्क्रिप्ट से क्या होता है कि जो न्यू लाइन कैरेक्टर आता है ना, तो हर बार वो नई लाइन क्रिएट होती है, ये जो तुम बीच में स्पेस देख पा रहे हो। तो अपन ने स्क्रिप्ट क्या करा, वो वो जो उसका जो न्यू लाइन वाला कैरेक्टर था उसी को क्या कहते हैं, सिंपली रिमूव द एक्स्ट्रा न्यू लाइन जो हर एक लाइन के बाद है, जो अब लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं। अपन पूरे कंटेंट को एक साथ रीड नहीं कर रहे। तो एक लाइन पढ़ेगा फिर उसके साथ वो स्पेस लगा देगा न्यू लाइन कैरेक्टर, तो उसे रिमूव करने के लिए स्क्रिप्ट लगा दिया था। ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट का काम था, बस इसके अंदर यही था। तो अब एक चीज आती है, जैसे कि लेट्स गो टू द स्लाइड फर्स्ट, विद वाला स्टेटमेंट कि यूजिंग विद स्टेटमेंट। तो दो तरीके हैं फाइल पढ़ने के, एक जो अपन ने अभी देखा दैट वी हैव गॉन थ्रू, एक है विद के थ्रू। तो ऑटोमेटिकली हैंडल्स फाइल क्लोजिंग। इसमें यू डोंट हैव टू राइट फाइल डॉट क्लोज एट द एंड। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग विद वाला ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है, लाइक इट इज क्रिएटेड बाय पाइथन इटसेल्फ, बिल्ट इन फंक्शन है। पाइथन ऑटोमेटिकली क्लोजेस अ फाइल एज सून एज द स्कोप ऑफ विद इज ओवर। ठीक है, जैसे ये विद का ये जो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है इस स्कोप के बाहर आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उस पर्टिकुलर ओपन फाइल को क्लोज कर देता है। तो ये लाइब्रेरियन समझ लो कि सपोज कि किसी स्टूडेंट ने साइंस सेक्शन से बुक उठाई, पढ़ी और टेबल पे छोड़ के चला गया, तो लाइब्रेरियन आएंगे फिर उसको उठाएंगे और वापस उसको उसके पर्टिकुलर सेक्शन में रख देंगे। ठीक है, तो ये एक और मेथड है फाइल्स रीड करने का, तो ऑटोमेटिकली हैंडल्स फाइल क्लोजिंग। तो इसका लिखने का तरीका लाइक विद ओपन, फिर फाइल का नाम जैसे अपन ने देखा है फाइल, एंड देन उसके जो फाइल डॉट रीड अपन ने कंटेंट वाले वेरिएबल में लिखा था, इन्होंने डेटा वेरिएबल यूज कर लिया।
क्लीनर सिंटेक्स है, ऑटोमेटिकली क्लोजेस फाइल्स आफ्टर ब्लॉक एग्जीक्यूशन, मतलब ब्लॉक का जब स्कोप खत्म हो जाता है तो उसको कर देता है। लेट्स सी इट विद एग्जांपल ऑल्सो, कि आपने विद लिखा, ये पाइथन में पहले से बना हुआ है, इस चीज को क्या करना है, हेलो डॉट टीएक्सटी लिखी, ठीक है। उसके बाद किस मोड में फाइल ओपन करनी है, तो वी वांट टू ओपन इट इन रीडिंग मोड। उसके बाद लाइक एस, ये एलियस का काम करता है। तो अब हेलो डॉट टीएक्सटी फाइल की जगह अपन मतलब वी डोंट हैव टू राइट एवरीवेयर हेलो डॉट टीएक्सटी, अब उसको अपन इसके नाम से बुला सकते हैं, एलियस हो गया, मतलब जैसे चिंटू मिंटू हो जाता है ना, जो आपके रिजनल नेम का करते हैं, तो सिमिलरली इट इज लाइक दिस, कि उसका एक निकनेम क्रिएट हो गया फाइल। तो देन वी आर प्रिंटिंग दिस, प्रिंट फाइल डॉट रीड, और अब इसको प्रिंट करते हैं। देखो, तो वो प्रिंट हो गया। अभी अपन ने कहीं भी क्लोज नहीं लिखा, तो जो अपन मतलब 4 5 6 लाइन लिख रहे थे उसकी जगह अब आपको यू ओनली हैव टू राइट 2 लाइन इन ऑर्डर टू रीड अ फाइल। तो दैट्स हाउ इट बिकम्स वेरी इजियर विद दिस, विद स्टेटमेंट ना। तो ये आर मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स, इवन इन द ट्यूटोरियल दैट यू विल बी गोइंग थ्रू ऑफ डेटा एनालिटिक्स, एमएल एक्सेट्रा, तो वो इसी फॉर्मेट का यूज करते हैं कि विथ वालों यूज करो, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेता है ये, ठीक है। तो ये मतलब प्रिफर्ड वे है अकॉर्डिंग टू डेवलपर्स टू रीड अ फाइल और राइट इनटू अ फाइल, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। तो अब एक छोटा सा अपन एक वो डायरी टाइप बना के देखते हैं, लाइक मिनी डायरी। तो नाउ यू नो कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है। तो अब अपन एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, आई होप दिस विल क्लियर मोस्ट ऑफ योर डाउट्स रिगार्डिंग इट, कि इसका यूज कहाँ पे पड़ेगा, क्या ही यूज पड़ेगा। तो कि लाइक ईएन एंट्री हो गया, तो इनपुट, राइट टुडे डायरी, ठीक है। ये बात ये देना दे दो, एंड देन एंटर। इसके बाद अपन एक फाइल क्रिएट करते हैं कि लेट्स ओपन, एक फाइल बना रहे हैं जिसका नाम है DAIR, डायरी डॉट टीएक्सटी। इसको अपन अपेंड मोड में करेंगे कि डायरी में अपनी एंट्री इरेज ना हो। अगर अपन डब्लू की यूज कर लेते तो अपनी एंट्री जो थी वो इरेज हो जाती, है ना। इसलिए अपन इसको इस मोड में खोल रहे हैं कि अपेंड मोड में, कि हमारे हम चाहते हैं कि लाइक एवरी डायरी एंट्री शुड बी प्रेजेंट विद द प्रीवियस डायरी एंट्री, है ना। तो फाइल डॉट राइट करेंगे। अब राइट क्या करना है, जो एंट्री अपन यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, वो अपन को इसकी डायरी के अंदर लिखनी है। तो लाइक एंट्री प्लस लिखते हैं वेन एवर यू वॉन्ट टू कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग, तो उसके लिए आपको प्लस लिखना पड़ता है। तो प्लस स्लैश एन, ठीक है। न्यू लाइन कैरेक्टर अपन हर उसके बाद एंट्री के बाद स्टोर करें, ताकि हमारी जो एंट्री है वो हर बार नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो इट इज ह्यूमन रीडेबल एंड मतलब अच्छा लगता है दिखने में। तो देन प्रिंट, एक यूजर को मैसेज भी दे देते हैं लास्ट में कि डायरी जो है आपकी सेव्ड हो गई, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, पहले इसको क्लियर कर दो, अब रन बोलते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी एंट्री आपको लिखनी है, जैसे कि टुडे आई एम लर्निंग फाइल, ठीक है, एंटर कर दिया, डेटा सेव्ड हो गया, डायरी डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट हो गई, उसके अंदर ये एंट्री आ गई, ठीक है। अब फिर से अपन इस पाइथन को रन करते हैं। Yesterday I have gone,
इसको भी एंटर कर दो, डाटा सेव हो गया। तो ये देखो रियल टाइम में अपडेट हो रहा है। अब फिर से अगर रन करोगे फिर से एंट्री आ जाएगी, कुछ भी लिख दो XYZ। ठीक है। अब इधर देखो ये फोर्थ लाइन आ गई और थर्ड लाइन आ गई, है ना। तो नाउ यू हैव क्रिएटेड योर डायरी। कितनी बार प्रोग्राम क्लोज करो, कितनी बार इस प्रोग्राम को ओपन करो, हर एक रिजल्ट आपका यहाँ सेव होता चला जाएगा। जब भी आप ओपन करोगे इसको तो ये सेव्ड रहेगा। देख लो कि आपने क्या था, क्या हिस्ट्री थी, उसी तरीके से कुछ भी देख सकते हो। इसी तरीके से यू कैन क्रिएट स्टूडेंट मार्क्स वाला सिस्टम। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो मतलब एक सिंपल सा प्रोग्राम दिखा दिया मैंने कि लाइक कि एक डायरी क्रिएट कर लिया आपने अपनी पाइथन प्रोग्राम के थ्रू, और बस कितनी लाइन लिख के कि 4 लाइन की पूरी ढंग से मिलती है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नाउ अपन सीएसवी का और देख लेते हैं कि लाइक हाउ सीएसवी वर्क्स, और हाउ थोड़ा सा इसमें चेंज है बस कि सीएसवी जो होती है ना कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, तो इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते। यू हैव टू पुट कॉमास बिटवीन द वैल्यूज इन ऑर्डर टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। तो सीएसवी जो है कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज वाला फॉर्मेट में इसको ये इट स्टोर्स द डेटा, स्टोर्स टेबुलर डेटा लाइक स्प्रेडशीट। जैसे स्प्रेडशीट यानी मतलब एक्सेल शीट ही हो गई। ये रोज और कॉलम्स होंगे। कॉमनली यूज फॉर डेटा एक्सचेंज बिटवीन टूल्स। ठीक है। लाइक मैंने इसका अच्छा सा एग्जांपल दिया तो मैं लेक्चर के बिगिनिंग में कि लाइक कैसे डेटा एनालिटिक्स में इसको यूज किया जाता है। पाइथन प्रोवाइड्स ए सीएसवी मॉड्यूल टू वर्क विद सीएसवी। दोनों तरीके देखेंगे, विद मॉड्यूल एंड विदाउट मॉड्यूल। पहले ना मैं विदाउट मॉड्यूल दिखा देता हूँ, इसमें पीपीटी में है नहीं विदाउट मॉड्यूल वाला, बट आई विल शो यू कि विदाउट मॉड्यूल वाले में कैसे लाइक यू कैन क्रिएट, है ना। उसके बाद फिर मॉड्यूल वाले में अपन देखेंगे कि सीएसवी इंपोर्ट सीएसवी मॉड्यूल, ये पाइथन ने पहले से ही एक लाइब्रेरी बना रखी है इन ऑर्डर टू वर्क विद सीएसवी फाइल्स, ताकि यू डोंट हैव टू राइट सम अदर थिंग्स इन ऑर्डर टू वर्क विद दीज सीएसवी फाइल्स, एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगे। बट मैं फिर भी बेसिक दिखा देता हूँ लाइक हाउ यू कैन क्रिएट विदाउट मॉड्यूल एंड विद मॉड्यूल। तो विद ओपन स्टूडेंट डॉट सीएसवी। ठीक है। अपन को फाइल क्रिएट करनी है, इसको राइट मोड में बनाते हैं क्योंकि अभी तो कुछ है ही नहीं अपने पास एज फाइल। ठीक है। ये विद मॉड्यूल के थ्रू अपन कर रहे हैं। तो विद मॉड्यूल बहुत पावरफुल मॉड्यूल है, इट कैन डू वेरियस टास्क। तो लाइक अब क्या करना होगा, अब राइट कर रहे हैं अपन इस फाइल के अंदर, फाइल डॉट राइट, है ना। तो उसके लिए फिर यू हैव टू राइट कि मैं एक नेम कॉलम चाहता हूँ, एंड इफ यू वांट कि ये सेपरेट हो एज कॉलम से तो कोमा लगाना पड़ेगा। तो एज कोमा सिटी। ठीक है। उसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर डाल दो। ओके। अब फाइल डॉट राइट, नाउ यू कैन फिल द डिटेल्स की अमित कॉमा 20 कॉमा दिल्ली। ठीक है। इसके बाद फिर न्यू लाइन कैरेक्टर डाल दो। एक एंट्री और ले लेते हैं लाइक फाइल डॉट राइट या कॉमा 21 कॉमा मुंबई। तो ये अपन ने ना जल्दी जल्दी से एक सीएसवी फाइल का क्रिएट करने का वी हैव रिटन अ कोड। अब इसको रन करते हैं। फाइल क्रिएट हो गई। अब इधर देखो ये स्टूडेंट डॉट सीएसवी नाम की फाइल इधर क्रिएट हो गई है। और लेट्स सी इसके अंदर क्या है। देखो इस तरीके से सीएसवी फाइल का डेटा रहता है। नेम एज सिटी, अमित 21 दिल्ली, प्रिया 21 मुंबई। तो ये हो गया कि विदाउट सीएसवी मॉड्यूल, इंपोर्टिंग सीएसवी मॉड्यूल अपन ने इस फाइल को क्रिएट करा। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन क्रिएट ये इसी तरीके से इफ यू वांट टू रीड तो यहाँ से रीड लगाओ, और वो फाइल 4 लाइन इन लाइन वाला यूज करके प्रिंट कर लो। वो भी दिखाई देता हूँ जल्दी से, है ना। अगर बिना मॉड्यूल के रीड करनी हो तो बस ये चीज हट जाएगी, बाकी सब सेम रहना है। तो 4 लाइन इन फाइल, इसके बाद प्रिंट कर दो बस अपनी जो भी एंट्रीज है उसके अंदर कि लाइन डॉट स्ट्रिप। बताइए बताया ये मैंने वाई वी आर यूजिंग स्ट्रिप, है ना। तो इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो वो सारी एंट्रीज इधर आपके टर्मिनल पे भी हैं। तो आप रीड करते हैं आप। अब करते हैं सीएसवी मॉड्यूल का यूज करके, तो उससे क्या चेंजेस आते हैं, उससे थोड़ा लिखने के चेंजेस आ जाते हैं, राइट। तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर द सिंटेक्स। पहले तो इंपोर्ट करोगे आप मॉड्यूल जो यूज करने वाले हो, सीएसवी मॉड्यूल। ठीक है। इसके बाद यू विल बी राइटिंग की विद ओपन स्टूडेंट डॉट सीएसवी तो अपन ने क्रिएट कर ही ली थी, कुछ और कर लेते हैं।
टीचर डॉट CSV, ठीक है, कोमा, ये रीड ही कर लेते हैं, क्रिएट करने की जगह क्रिएट करेंगे फिर रीड करेंगे। तो लेट्स डू इट कि स्टूडेंट डॉट CSV, और रीडिंग मोड में अपन को ओपन करना है एज फाइल, सब सेम रहने वाला है। इसके बाद बस इंपोर्ट अपन CSV के थ्रू गया, रीड भी अपन CSV के थ्रू करेंगे। तो एक अपन ने रीडर वेरिएबल बनाया, एंड देन वी आर यूजिंग CSV डॉट रीडर। और ये reader है ना, तो ये रीडर मॉड्यूल बनाया, और ये CSV डॉट रीडर, ये प्री बिल्ट फंक्शन है डॉट रीडर वाला जो पाइथन में बना हुआ है, ताकि CSV फाइल को अपन रीड कर सकें। उसके लिए अपन को कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं करना पड़े, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। एंड देन वी राइट की 4 रो इन रीडर, जो उसके रीडर वेरिएबल के स्टोर अंदर स्टोर्ड है वो वैल्यूज, ठीक है। अब देखने इसमें डिफरेंस क्या आएगा, लाइक प्रिंट रो। नाउ अर्लियर वी वर गेटिंग कि सिंपली वी आर गेटिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल इन द CSV, है ना। सिंपली आ रहा था कि लाइक एक ही साथ आ रहा था, एक लाइन जैसा कंटेंट आ रहा था। बट इफ यू यूज CSV मॉड्यूल, तो पाइथन विल रिटर्न रो एज अ लिस्ट। ये लिस्ट बन गया, स्क्वायर ब्रैकेट लग गया, इफ यू आर एबल टू सी द डिफरेंस। अब इससे क्या होगा, तो डेटा ऑपरेशंस, डेटा एनालिटिक्स में जब यू हैव टू परफॉर्म ऑपरेशंस, तो लिस्ट पे आप ऑपरेशंस कर सकते हो। ऑन अ होल फाइल दैट बिकम्स थोड़ा टिपिकल वाला पार्ट, बट लिस्ट आर इम्यूटेबल। अपन ने पढ़ा था ना कि लिस्ट में चेंजेस कर सकते हो, यहाँ से एनालाइज भी कर सकते हो। तो वो इन हर एक रो की एंट्री को एक लिस्ट की तरह क्रिएट करेगा, इफ यू आर यूजिंग CSV मॉड्यूल, ठीक है। और अगर आपको ये चीज लाइक मतलब कि उस पिछले वाले वे से भी आपको सिर्फ फाइल रीड करनी है तो अलग बात है, बट इफ यू वांट टू use this in data analytics or machine learning, please go with the CSV dot reader वाला फंक्शन, है ना। That is the preferred way and the standard way to use it. अब एक अगर मिनी प्रोजेक्ट करके देखें अपन इसी के साथ, जल्दी से, अपने पास 5 मिनट है ना, कर लेते हैं। तो ये सब चीज सेम रहेगी, इंपोर्ट CSV। इसके बाद अपन ले लेते हैं कि राइट नेम, नेम इनपुट ले लेते हैं, नेम इक्वल टू इनपुट। उसके बाद एज ले लो, ये दो वेरिएबल ले लेते हैं अभी के लिए। इसके अंदर से अपन पुराना कंटेंट इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब अपने इसमें कुछ नहीं है, तो एज हो गया, नेम हो गया। इसके बाद अपन ओपन कर रहे हैं ये CSV डॉट, ठीक है। या फिर एक नई फाइल ही क्रिएट कर लो, तुम्हारे भी समझ में सही क्या है। डेटाबेस ले लेते हैं, इसका नाम डेटाबेस जो CSV, एंड देन इसको ओपन मोड में अपन को क्रिएट करना है, एज अ फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद अपन को एक रीडर ऑब्जेक्ट की जगह राइटर ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि अपन इस फाइल के अंदर लिखने वाले हैं, राइट। तो राइटर CSV डॉट राइटर हो जाएगा इधर, ठीक है। ये फाइल डॉट राइटर हो गया। और नाउ एक अलग लाइन हमें लिखनी होगी कि राइटर डॉट राइट रो, हम एक रो लिखेंगे, राइट। रो के अंदर हमारी क्या वैल्यूज होंगी, एक नेम जो हम ऊपर से ले रहे हैं, और एक एज, ठीक है। और ये बस इतना ही करना है, और इसके बाद ये लाइन हटा देनी है, जस्ट रिमूव दिस लाइन। और उसके बाद प्रिंट,
स्टूडेंट एडिट, ठीक है। तो ये अपन लास्ट में मैसेज प्रिंट कर देंगे। अब इससे जल्दी से अपन इनपुट लेके देखते हैं। पाइथन प्रोग्राम को रन किया, नेम उसने पूछा, नेम अपन ने डाल दिया रवि। फिर उसने एज पूछी, एज अपन ने डाल दी 21, स्टूडेंट एज। फिर पाइथन का अपन ने प्रोग्राम रन किया, आपके अपन ने डाल दिया कि नेम सोनी, एज डाल दी 25, ठीक है, स्टूडेंट एज। ये सारी चीजें अपनी डेटाबेस सीएसवी डॉट एक फाइल क्रिएट होगी, उसके अंदर ये सारी चीजें इधर ऐड होती चलेगी, और वो सारी चीजें इसके अंदर आ, राइट। तो इस तरीके से यू कैन क्रिएट अ सीएसवी फाइल। और इसमें देख लेते हैं में कुछ करता है। तो राइटिंग टू अ सीएसवी फाइल वी हैव सी इमेज, है ना, ऑटोमेटिकली ऐड कोमास। तो वो जब अपन इंपोर्ट करते हैं तो कोमा भी अपन को नहीं लिखना पड़ा, इफ यू हैव नोटेड, है ना। वी ओनली जस्ट राइट टू, वो वी ओनली जस्ट हैव टू राइट द वैल्यूज, और वो अपने आप होता चला, राइट। तो उसमें एक चीज और कि ये न्यू लाइन वाला देख के याद आ गया, लाइक कि मैं इधर बताना भूल गया। अभी यू कैन सी कि डेटाबेस सीएसवी में ना बीच में लाइन आ जा रही है, लेकिन ये हमारे लिए एक्स्ट्रा चीज है, कुछ इसका फायदा है नहीं। तो इसमें इंपोर्ट मॉड्यूल ही अपन को एक फंक्शन फंक्शन मतलब वो वेरिएबल प्रोवाइड करती है, ऑप्शन कि न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करो, और उसका ये वैल्यू रख दो, इसको सेव कर दो, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है इसकी। डेटाबेस डॉट सीएसवी की वैल्यू इरेज कर देते हैं। जल्दी से दो स्टूडेंट की डिटेल डाल के देख लेते हैं थोड़ी से। तो राइट, रवि और एज 21, स्टूडेंट एडेड। ऊपर देखना वो अपडेट होता जा रहा है, राइट। प्रिया, एज 23, स्टूडेंट एडेड। तो वो अब नया लाइन वाला कैरेक्टर भी चला गया, कोमा भी अपन को कहीं नहीं लिखना पड़ा, राइट। तो ये सब इंपोर्ट मॉड्यूल का कमाल है। So this is how things basically works in file handling. With this, I think approximately I have covered everything. So your assignment will be कि, like read a CSV file and print its first 5 lines. तो उसमें लूप में तुम चाहे तो पूरी प्रिंट कर दो, फर्स्ट 5 लाइन्स प्रिंट करनी है तो इन रेंज वाला ऑप्शन लगा के फॉर लाइन इन रेंज 0 से 5 लिख लेना, ठीक है। इफ योर फाइल, पर उसके लिए तुम्हारी फाइल में 5 से ज्यादा लाइन होनी भी चाहिए, राइट। तो टीएक्ससी फाइल बनाना, ये सीएसवी फाइल बनाना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखना, अगर टी और सीएसवी बना रहे हो तो देयर यू हैव टू राइट 5 6 लाइन्स, देन इंपोर्ट। और उसमें यू कैन रेफर दिस एग्जांपल ऑल्सो, ठीक है, कि फॉर आई मतलब फर्स्ट 5 लाइन्स वाला कि फॉर आई कॉमा रो इनोमरेट रीडर, या तो इनोमरेट यूज कर लो, इन रेंज यूज कर लो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो जैसे ही आई इक्वल टू 5 हो जाए तो ब्रेक करके बाहर आ जाना। ब्रेक का मैंने तुम्हें बताया था जब लूप पढ़ा रहे थे, राइट। तो इम्पोर्ट है सीएसवी मॉड्यूल, मतलब इम्पोर्ट सीएसवी जैसे दिखाया है, ओपन द सीएसवी फाइल यूजिंग ओपन, यूज सीएसवी डॉट रीडर टू रीड द फाइल, एंड देन प्रिंट ओनली द फर्स्ट 5 rows ऑफ दैट पर्टिकुलर सीएसवी फाइल, ठीक है। और न्यू लाइन कैरेक्टर इज यू लाइक ट्राई टू डिस्प्ले नीटली, तो उसके लिए न्यू लाइन कैरेक्टर कर लेना ताकि हर बार एक नई लाइन में प्रिंट हो। एंड दिस इज ऑल फॉर योर असाइनमेंट फॉर दिस सेशन ऑफ पाइथन फाइल हैंडलिंग सेशन. With this, our internship program of this Python is completed. For any help and support, please contact us here. And thank you for joining today's session. If you have any doubt, please feel free to ask. Otherwise, we will wind up this session. So just a quick question. So as you are actually, there's a problem for me in using Python. So that's why I Hmm. was using online like program basically to Hmm. do all the programming. So in this way, how will I like it's on that Chrome which I'm using. So how will I manage to import the CSV file there? That's the only Uh, problem I have there. yeah. That's a problem, Chirag. Right? Ki, there you cannot create files, but you go to Colab, Google Colab. Have you heard about it? I have to read about it actually. I am showing you. You just go to this Google Colab, log in into it using your email ID, है ना? Mm. And then there you get this option कि new book etc वाला करके new notebook करके, तो ये welcome to Colab, तो एक simple एक new file create कर लेना, then it will create a new notebook for you.
और उसके बाद एक सेकंड इसको ओपन होने दो। तो इधर क्या होगा ना, गूगल कोलैब सपोर्ट्स बाय डिफॉल्ट पाइथन। तो यहाँ तुम कुछ भी लिखोगे, यहाँ मतलब ये थोड़ा एआई वाला पार्ट आ गया। तो एआई यूज नहीं करनी है, यू जस्ट राइट की प्रिंट। ठीक है, और इसको हिट कर दोगे ना, रन करोगे, तो ये पाइथन की तरह ही करता है सब कुछ, मतलब जैसे पाइथन में होगा, जैसे पाइथन करता है। इसकी एक आध वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, देन यू विल गेट फैमिलियर विद इट। तो इसमें क्या होगा ना कि लाइक जैसे ही तुम अपना कुछ भी लॉजिक इधर लिखते हो, एंड एज सून एज यू हिट द बटन ना, तो ये रिजल्ट इधर डिस्प्ले हो जाता है, राइट। और इसमें क्या होगा, इफ यू आर क्रिएटिंग फाइल्स ना, तो वो फाइल्स भी इधर क्रिएट होती चली जाएंगी, CSV वगैरह फाइल। ठीक है, तो ये मतलब एक VS कोड एडिटर की तरह ही काम करता है। ये बेसिकली उसमें ML वगैरह की चीजें यूज करने में काम आता है जब मॉडल रन करते हो। ये गूगल कोलैब तुम्हें एक GPU भी प्रोवाइड करता है, मतलब TPU वाला, जो गूगल के खुद के GPU है। तो ये गूगल ने प्लेटफॉर्म दिया है, इट इज फ्री टू यूज, ट्राई टू यूज इट, आई होप दिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है सर। ओके, So till when should I submit all the assignments? yeah, try to submit it as soon as possible. Further details will be shared by Nitin sir, that I myself don't know. Okay. So he will be giving you a deadline till like itne till this